I fucking hate bloating so much. For the past few days, bhai, I was looking like fucking handsome dog because मैं like दिन में बस एक मील खाता हूँ ना, so most of the time my insulin is very low and मेरी bloating बहुत कम होती है. But today, for some reason, I had a fucking pizza. So look how fucking bloated and fat I look. By the way, guys, I don't like this fucking background at all. मैं अपनी मौसी के घर पे मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया है. Let's give it a background. It's better. Yes, my love. So an update. Last year at this point of time, I was 96 kgs and now I'm 82 kg. 14 kg ka weight loss. Pretty fucking cool, man. And I know कि अभी next 2 महीनों में I'll get to I think 78, 77 kg, which is also pretty fucking good, man. I'm gonna get abs by quarter 2. I guarantee. जा रहे हैं देखो भाई की. But anyway, I wanted to talk about something crazy. What are my plans with my business? ये मैं आज बात करूँगा. देखो यार, मैं ना बहुत एम्बिशियस आदमी, सो मैं बहुत ऊपर ऊपर की सोचता हूँ. 100K per month, like $1 million a month. But I actually want to tell you guys what my plan is. So let me guys give you a basic gist. I'm not going to tell you guys how much I'm earning right now because भाई I have stopped doing that. मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे socials चेक करके मुझे मतलब भाई people just treat you different, okay? But मैं तुम लोग को बता दूंगा. I have 3 clients right now, and all 3 of these clients are in the running niche. And basically, my thing is now that I own an appointment setting agency who helps running coaches only, which is like so fucking niche, bro. Like, I tell people मैं ये करता हूँ, they're like, what? Running niche? वो क्या होता है? Wait, so people want to get coached for running. भागने के लिए भी कोच चाहिए. So like it's very specific niche, all right. And I have 3 clients. मेरे पास बस 3 clients हैं और तीनों clients उसी niche के हैं by coincidence. So this is a very good thing. अब मैं तुम लोग को बताता हूँ क्यों. If you are an agency owner ना, niche the fuck down. Because when you niche, देखो भाई, तुम्हें अथॉरिटी चाहिए होती है. क्लोजिंग डील्स, गेटिंग क्लाइंट्स में बहुत बड़ी चीज़ है अथॉरिटी. 2 चीज़ों से आती है. तुम कंटेंट बनाते हो, तुम्हारे पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, people are going to get attracted like clients are all not people but clients are going to get attracted to you. वो तुम्हारे पास खुद ही आएंगे. तुम उनको कुछ बोलोगे, they are like, हाँ भाई, ये बंदे के पास फॉलोअर्स है, this guy has status, this guy has some sort of authority. You either produce content or you niche the fuck down और तुम्हारे सारे clients उसी niche के हों. The thing is, at this point now I can charge like very fucking high prices, very high prices. And that is because भाई मेरे पास 3 clients हैं, तीनों उसी niche के हैं. No other appointment setting agency can like compete with me in the running niche because मेरे पास जो भी clients हैं running niche में और तीनों के तीनों को मैंने बहुत अच्छे results generate करे हैं. So like even if like I hop on a sales call with a running coach and that person says like, भाई your prices are way too high, I can just tell them कि भाई देखो, मेरे पास इस बंदे का नंबर है, ये भी इसकी भी अपॉइंटमेंट सेटिंग एजेंसी, आधे प्राइसेस चार्ज करेगा, but he is not experienced in your niche. I know everything about your niche, this that, and the thing is that guy is obviously going to be like, हाँ यार, this guy मतलब ये जो आर्यन नाम का बंदा है, he is actually true. And the thing is, this is actually true. I know a lot about my niche, and the thing is because मैं खुद रनिंग करनी भी शुरू कर दी, सो दैट आई नो कि रनर्स के क्या पेन्स होते हैं, एंड आई कैन क्रिएट बेटर स्क्रिप्ट्स विच हेल्प्स मी टू मेक मोर मनी. लाइक नाउ आई नो कि रनर्स को इंजरी प्रिवेंशन मतलब कितना इंजरी और रिकवरी कितना बड़े प्रॉब्लम होती है रनर्स की. भाई मैं एक दिन मुझे याद है 12 किलोमीटर भागा, मेरी गांड फट गई. आई यूज्ड टू थिंक भाई डेविड गॉगिन्स कर सकता है, सब कर सकता है. मैं 12 किलोमीटर एक बार में भागा, मेरी गांड फट गई.
So, like, what I'm trying to say is that I know a lot about my niche, and this gives me authority, and it is now very easy for me to reach like $20,000 a month. Like, I would need probably 7-8 clients, और उसमें मैं $20,000 पर मंथ के रेवेन्यू पे पहुंच जाऊंगा. और आई थिंक आई एम 33% देयर. एंड द थिंग इज, फर्स्ट क्लाइंट सबसे मुश्किल होता है, सेकंड क्लाइंट थोड़ा कम मुश्किल होता है, थर्ड क्लाइंट उससे भी कम मुश्किल होता है. एंड द थिंग इज, उसके बाद सब कुछ आसान होता रहता है, बिकॉज द hardest thing is to earn your first dollars, to earn your first rupee, right? And I have earned my first client. I have given her good results. रीसेंट क्लाइंट को हमने पिछले महीने ऑन बोर्ड करा था, बहुत अच्छा चल रहा है उसका काम, बहुत पैसे कमाए हैं मैंने उस बंदे से, राइट? सो यू नो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, फ्रॉम माई अपॉइंटमेंट सेटिंग एजेंसी आई बिलीव मैं अभी नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में आराम से $20,000 पर मंथ तक स्केल कर सकता हूँ. द क्रेजी पार्ट इज, 2 क्वार्टर्स बाद, 2 क्वार्टर्स बाद मतलब एक्चुअली 1.66 क्वार्टर्स बाद, आई बिलीव जब मैं 18 का हो जाऊंगा, आई विल बी अर्निंग माई अपॉइंटमेंट सेटिंग एजेंसी विल बी easily generating around 15 to 20K per month, like in USD as revenue. I can guarantee you that, bhai. It's very easy for us right now. Like me and my business partner Toshik, we were talking about this. Like, bhai, बहुत आसान है बहन, जो हम क्या कर रहे हैं. Like the only thing making us, bhai, मतलब like limiting us is our hard work. But the thing is, dude, it's like 3 a.m. right now. और मैं लास्ट 4 घंटों से अपने नए वाले एम्प्लॉयज़ के साथ कॉल पे था, जस्ट फकिंग ट्रेनिंग द फक आउट ऑफ देम. लाइक भाई, अब हार्डवर्क भी नहीं लिमिट कर रहा. वन द थिंग दैट इज लिमिटिंग मी इज बोर्ड्स, वरना मैं और जल्दी स्केल कर लेता. बोर्ड्स और फिर उसके बाद जो कंपेरेटिव्स आते हैं. बट डूड, इट्स वेरी फकिंग ईजी फॉर मी राइट नाउ. लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर. अनदर थिंग इज दैट भाई, आई डोंट वांट, लाइक मैं चाहता हूँ टू गेट दिस शिट टू 100K पर मंथ. ओके, अब 100K पर मंथ के लिए मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ. ईदर आई कैन जस्ट कंटिन्यू डूइंग अपॉइंटमेंट सेटिंग, एंड आई ओ वाओ, मैं अपने खुद की अच्छी शक्ल को एक्चुअली आई एम ब्लोटेड एज फक राइट नाउ. खुद की मतलब फक, व्हाट द फक एम आई सेइंग, disgusting as fuck. But what I can do right now, like what I can do after 20K per month is that मैं या तो अपनी niche change कर दूँ. I switch to a niche like business or real estate, जहाँ पर average ticket price बहुत high है और मैं 3 times per client कमा सकता हूँ, और I increase the breadth of my clients. Now, what the fuck do I mean by that? This is basically something I've coined myself. If you want to scale your business, right, you need to increase your length and you need to increase your breadth. What the fuck do I mean by that? Length is basically the number of clients and breadth is the value per client. Abhi meri value per client is capped at around $2,500 per month, right? बट आई वॉन्ट दिस शिट टू बी लाइक $10,000. आई वॉन्ट कि मैं एक क्लाइंट से $10,000 कमाऊँ. बट द थिंग इज, उसके लिए मुझे अपने ही सिस्टम्स को इम्प्रूव ऐसे करना पड़ेगा कि मैं अपने क्लाइंट को एटलीस्ट $100,000 महीने का कमाऊँ, तभी तो मैं उनसे $10,000 पर महीना चार्ज कर पाऊँगा. आई बिलीव कि मैं उनको एटलीस्ट 10x वैल्यू दूँ जितना मैं चार्ज कर रहा हूँ. एंड दिस इज समथिंग आई रियली बिलीव इन. दैट्स व्हाई आई लव वर्किंग इन कमीशंस, राइट? So it's like I can do these 2 things. मैं अपनी niche switch कर सकता हूँ, but I would say the best thing is slowly switching my niche, slowly switching to higher ticket niches, and also increasing my breadth. Right now, the only thing that I do is appointment setting, but I'm thinking that after like Q2 is going to end, I'm going to partner up with managers with who have sales teams जिनका closing rate above 50% हो. अब सेल्स मैनेजर बहुत पैसा खा जाता है, तो मैं ऑनेस्टली डायरेक्टली अगर देखें तो ब्रेक इवन पे ही चलूँगा. बट बिकॉज उनका क्लोजिंग रेट हमारे क्लाइंट से ज़्यादा होगा, तो मेरा इनडायरेक्टली प्रॉफिट ही होगा ज़्यादा. सो दैट इज़ वन थिंग. प्लस वो मेरा ऑफर क्रिएट करने में हेल्प करेगा. पीपल विल एक्चुअली ग्रेविटेट टूवर्ड्स मी बिकॉज आई एम डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स टू एक्चुअल फकिंग सेल्स, राइट? And I can charge them a lot. Plus, I can start doing ads. Ads is a big thing.
I can basically systemize their whole client acquisition process. Right now it's not systemized. अभी वो closing खुद करते हैं. But I can systemize it. कि भाई मैं इनको महीने के $100,000 चार्ज वो कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ $100,000 बेंच, तो उसमें से मैं 10K आराम से लूँ, तब मेरे पास होगी अथॉरिटी कि भाई मैं तुमसे चार्ज करूँगा. मैंने तुम्हें मादरचोद 80 लाख रुपए कमाए हैं, राइट? Yeah, I mean, that is my business plan. But also this year, I am also going to lock in on my startup called Bang. Some of you guys have been watching me for a long time. They might be knowing what the fuck Bang is. तो Bang is यार, मैं तुम लोगों को बताता हूँ. Bang is basically, you must have heard of Zepto, right? Basically Zepto है स्पीड से, मतलब जेप्टो इज लाइक तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स आता है भाई जल्दी जल्दी. इसमें भी ना तुम्हारे पास लड़कियां आती हैं जल्दी जल्दी. आई मीन दैट वाज द इनिशियल प्लान कि पीपल कैन हायर स्ट्रिपर्स बैंक्स है, बट फिर हमें लगा हाँ यार ये इलीगल हो जाएगा. सो व्हाट वी डिड वाज कि वी made it like a speed dating app. Basically my vision with this is that if I go on a date on Hinge, like I have gone on dates, so what happens is कि भाई I genuinely don't want to fucking hear about what Shivangi has to say about her passion for art galleries. Like, Shivangi, I just want you to suck my dick. And this just sounds very like misogynistic or something, or I don't know what the fuck sexist. मुझे नहीं पता तुम लोग क्या शब्द यूज़ करोगे, especially औरतें. But that's what I want, and बहुत सारी लड़कियों को भी चाहिए भाई. If you meet a guy who is like very good looking and stuff, तो like you don't really want to you don't give a shit about वो क्या, मतलब उसका क्रिकेट का क्या इंटरेस्ट है, राइट? यू जस्ट वांट टू गेट फक बाय दैट गाय. हम्म. हाँ. सो आई मीन दैट इज़ माई विजन एक्चुअली. इसको बनाना मुश्किल होगा, यू नो बिकॉज आई बहुत सा अभी डेटिंग ऐप्स में बहुत फ्लॉज होते हैं, मैं देखता हूँ, बिकॉज देखो लॉन्डे और लॉन्डे की प्रायोरिटी अलग अलग होती है. लॉन्डो को बस सेक्स चाहिए, लॉन्डे को इमोशनल इंटीमेसी भी चाहिए होती है, बहुत कुछ चाहिए होता है. सो it will be fun to make that shit. तो उसके लिए मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस शिट टू बी बूट स्ट्रैप्ड एट द स्टार्ट. मतलब स्टार्टिंग में बूट स्ट्रैप, फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स व्हेन आई स्केल. बट मैं इस पर भी काम करूँगा. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई विजन्स. प्लस आई डोंट नो, बट आई बिलीव कि नेक्स्ट 2-3 सालों तक तो यार माई मेन थिंग विल बी disappointment setting agency. If Bang, this my startup doesn't like explode, I believe it will explode. I genuinely believe that. I'm very good at marketing. I can position Bang very well. सर्विस डिलीवरी का मुझे नहीं पता कैसे होगी, बट ओह फक मी, मेरा फ़ोन गिर गया. बट दैट इज़ माई विजन भाई, माई बिजनेस विजन फॉर दिस ईयर. And I am very inspired by people like Julius Petrulus. I can't pronounce that motherfucker's name, but basically that guy is a trader, right? He's I think 32, 33. He hangs out with Drake. He hangs out with like Bad Bunny. Bhai, I'm like, and that guy is like so fucking cool. Like वो बंदा trader है, right? But the thing is, he's not like ऐसा your average trader. जैसे कि एक बंदा है, मेरे दिमाग में आइडिया है, वो ये बंदे पता नहीं क्यों आ गया. एक फॉरेक्स किंग करके बंदा है ना, जो हाईवे पे बहन जो ट्रेड करता है ना. दिस जूलियस गाय इज नॉट लाइक दैट. दिस जूलियस गाय इज अ लेजिट फकिंग ट्रेडर. और मैं वो लाइक उसका डेली ऑन एवरेज PNL में या तो +$1 million का प्रॉफिट हो रहा होता है, या -$500,000 का लॉस हो रहा होता है. लाइक दिस गाय इज जेन्युइनली मूविंग इन द बिग लीग्स. तो दैट इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ माई ड्रीम्स कि भाई आई जस्ट हैव लाइक आई एम जस्ट फकिंग ट्रेडर, मेरे पास इतना पैसा है एंड आई एम जस्ट लाइक इतने बड़े लीग्स पे मैं मूव कर रहा हूँ. और there's this another guy called Rob the Bank. This guy has made a lot of money from e-commerce, और अब वो रैंडम ऐसी चीज़ें करता रहता है, लाइक साइड क्वेस्टिंग करता है बेसिकली, लाइक म्यूजिक बना रहा है वो, हाउस म्यूजिक एंड स्टफ. लाइक सही है कितना. अपनी जॉ लाइन कितनी फ्लेक्स करूँगा. द थिंग इज इट्स वेरी नॉट राइट नाउ, इट्स वेरी नॉन एग्जिस्टेंट. बट आई नो अभी से कुछ महीनों बाद मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ ना, विल बी लाइक डैम मैं मोटा था उस टाइम पे.
Guys, by the way, one good thing, bhai, I have reached 6 feet in height. अब मैं कोई लड़की मुझे घंटा गोस करेगी बहन जो पहले इतना गोस कर देती थी स्पेशली ऑन टेक्स्ट लाइक भाई वो पूछती थी ओ व्हाट्स योर हाइट मैं 5'11" क्या बताऊँ किस औकात से बताता था बहन जो क्योंकि मेरी हाइट 5'10" थी बट अब भाई अब आई एम 6 सो लेडीज ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड भाई गीली मत हो यार बट जो भी है next few months they're gonna be fucking amazing. Hell yeah, I'm very excited. That is my vision for this year.